عمران خان پر وزیرآباد حملے کی FIR کے بجائے GIT کیوں بنائی گئی؟ ملزم نوید کے وکیل نے سوال اٹھا دیا ہے۔ چیئرمین PTI کے زخم بھی جعلی قرار دے دیے، انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ میاں داؤد نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی GIT کو مذاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اور GIT کی ملی بھگت سے کیس خراب کیا گیا ہے، واقعے کی بنیادی معلومات اور شواہد ضائع کیے گئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کا ڈرامہ لانگ مارچ کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کیا گیا۔ سارے پاکستان کے پاس شہادت موجود ہے، صرف JIT کے پاس شہادت موجود نہیں ہے۔ مقصد صرف JIT کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اور ان کے گارڈ کو جو ہے وہ بچایا جائے۔ آج بھی اگر JIT صحیح طریقے سے تفتیش کرے تو معظم کا قاتل جو ہے وہ عمران خان کا گارڈ نکلتا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمیج کرنے کے لیے JIT اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا۔ ملزم کی حد تک فرانزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا، نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ JIT کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی۔ اگر PTI یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے، یہ واقع ہی ایسا ہے، تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی FIR درج کروائیں۔ یہ کیوں اپنی FIR درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے، وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں۔ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے، کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس پر سوال اٹھا دیا ہے۔ فواد چوہدری نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا؟ کس نے دباؤ ڈالا کہ میاں داؤد نامی نامعلوم وکیل کی پریس کانفرنس دکھانا لازمی ہے؟ ایسا کریں گے تو شبہات میں اور اضافہ ہوگا۔ زمان پاک لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت PTI کا اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں عمران خان پر حملے کی GIT رپورٹ، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 4 بجے نیوز کانفرنس کریں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، وقاص غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، اس اہم اجلاس کے حوالے سے بتائے گا۔ جی بالکل، آج بھی زمان پاک جو ہے وہ اہم سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عمران خان نے آج مرکزی قیادت کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی شریک ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری، اسد عمر جو ہیں وہ بھی زمان پاک میں پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے جو کیس ہے اس حوالے سے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ حکمت عملی طے کی جائے گی، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان پر حملے کے ملزم نوید بشیر کا اعترافی ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا؟ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ DPO گجرات اپنا موبائل فون SHO کے حوالے کرتے ہیں۔ SHO نے اس موبائل فون سے ملزم نوید کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا۔ SHO نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد موبائل فون DPO کو واپس دے دیا۔ عمران خان پر حملے کے ملزم نوید بشیر کا اعترافی بیان سامنے آیا تھا۔ وہ اس اعترافی بیان کی ویڈیو کس نے ریکارڈ کی تھی؟ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ اور اب یہ خبر کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حارث سہیل کا صبر آزما انتظار اب ختم ہوا ہے۔ مڈل آرڈر بیٹسمین کو طویل عرصے کے بعد ٹیم میں انٹری مل گئی ہے۔ T20 اور ٹیسٹ کے بعد شان مسعود کو ون ڈے ٹیم میں بھی جگہ مل گئی ہے۔ شاداب خان انجری کے باعث ٹیم میں شامل نہیں ہو سکے ہیں۔ زاہد غفار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، بتائے گا اسکواڈ میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیے، شاہد آفریدی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کا لاسٹ اسائنمنٹ ہے، اس کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اب سلیکشن نہ کریں، لیکن اگر مجھ پہ زور دیا گیا تو کیا پتا پھر میں اس جاب کو کنٹینیو کر لوں، لیکن فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن جب انہوں نے 16 اسکواڈ کا اعلان کیا اس میں بابر اعظم میں فخر زمان، حارث سہیل کی واپسی ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد، اور امام الحق ٹیم کا حصہ ہے۔ کامران غلام کو موقع ملا ہے، حسنین ہے، نواز ہیں، رضوان ہے، وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سلمان آغا، شاہ نواز دانی، شان مسعود کو بھی جگہ ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 نئے ڈومیسٹک پرفارمر ہیں، طیب طاہر اور لیگ اسپنر اسامہ بھی۔ یہ 16 رکنی اسکواڈ انہوں نے آج کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں اعلان کیا ہے۔ اس وقت بھی شاہد حفیظ جو نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور کھلاڑیوں کی جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زاہد۔ کراچی کی سیاست میں گرما گرمی جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے گورنر سندھ پر لگے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے رینجرز کو بااختیار بنانے کا بھی مطالبہ کیا، جبکہ فاروق ستار نے کہا ہے کہ MKM دھڑوں کی سربراہی خالد مقبول صدیقی ہی کریں گے۔
सर्द मौसम में कराची की सियासत गर्म। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए वजीर आला हाउस पर धरना देगी, जबकि MQM के धड़ों का बाज़ाब्ता इत्तेहाद चंद रोज में मुतवक्के है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने नियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए कहा, इनकी जमात कराची के हुकूक की जिदोजहद कर रही है। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन चाहती है, जबकि MQM इसमें इल्तबा तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार है। हाफिज नईमुर्रहमान ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे पर इल्जामात की तहकीकात का भी मुतालिबा किया। अगर आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है, हो सकता है आपने कुछ भी ना किया हो, कोई कब्जा ना किया हो, आपका कोई तिजोरी टावर ना हो, आपने कोई दुबई में आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, आपके सोने के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप एक्यूज तो है ना, तो या तो वो जो एक्यूज हैं आप उसको क्लियर करवाएं और फिर उसके बाद गवर्नर बने। दूसरी जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, MQM के धड़े 2-3 रोज में बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिद हो जाएंगे। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की बालादस्ती भी कबूल कर ली। खालिद मकबूल भाई की सरबराही पर गुज़िश्ता 2.5 सालों से मैं मुस्तकिल ये और मुसलसल ये कह रहा हूँ कि मुझे उनकी सरबराही में काम करने में कोई हर्ज नहीं। यकीन है कि अब इंशाअल्लाह ये चंद दिनों की बातें, कम अज़ कम MQM पाकिस्तान, MQM जो है वो तंजीम बहाली कमेटी। उन्होंने कहा, मुत्तहिदा और कारकुनों को मजबूत करने के लिए पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक हल्का बंदी और मरदमशुमारी के इशूज़ पर गौर किया जा रहा है। 9 जनवरी को एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से लाए हमल पर भी मुशावरत की जा रही है। उधर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मुश्तरका सदारत में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जारी है। तफसीलात जान लेते हैं, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी, इस वक्त MQM पाकिस्तान का कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में हैदराबाद में जो है वो राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जारी है। उस इजलास के अंदर जो है वो 9 जनवरी को होने वाला एहतजाजी मुजाहरा और मरदमशुमारी से मुतल्लिक और उसके अलावा जो सेंसिस हैं, सेंसिस के हवाले से जो है उनका इजलास में जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस इजलास के मुतल्लिक जो है वो ज़राए MQM का ये कहना है कि वो 9 जनवरी के एहतजाज के बारे में भी उनका इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अगर सिंध हुकूमत ने मुतालबा ना माने तो ये एहतजाज का दायरा मीरपुर और सिंध के दीगर शहरों तक भी फैलाया जाएगा। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बिलावल हाउस में सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में इजलास जारी है। इजलास में जो है वो मुल्क की मजबूरी सूरत हाल और सिंध की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास के बाद जो है वो मीडिया को बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह किया जाएगा। ठीक है, मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, डेरा इस्माइल खान में पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों पर हमला। फायरिंग से 5 जवान जख्मी हो गए, जबकि एक हमलावर भी जख्मी हुआ है। फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर नज़दीकी जंगल की तरफ फरार होने में कामयाब हो गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों पर हमला हुआ है और फायरिंग से 5 जवान जख्मी हो गए हैं, जबकि एक हमलावर भी जख्मी हुआ है। फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के तबादले के बाद हमला आवर नज़दीकी जंगल की तरफ फरार होने में कामयाब हो गया है। फायरिंग से 5 अहलकार जख्मी हुए और एक हमला आवर भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ है। डेरा इस्माइल खान से ये खबर, जहां पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया है और फायरिंग से 5 अहलकार जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ शेराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेराज। जी, ये पोलियो टीम पर मामूर पुलिस जवानों की चौधवान के करीब जो है वो पोलियो टीम की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उन पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया पुलिस जवानों ने जब जवाबी फायरिंग की दहशतगर्दों पर, तो दहशतगर्द जो है नज़दीकी जंगल का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के जवान जो है कई किलोमीटर तक उनका हमलावरों का ताक़ब करती रही और उनके पीछे जाती रही। हमलावरों की फायरिंग से जो है 5 पुलिस जवान जो है जख्मी हो गए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर जो है वो भी जख्मी होने की इत्तला है। हमलावर को जो दहशतगर्द जो थे अपने साथी दहशतगर्द को जो है वो साथ ले जाने में कामयाब हो गए और साथ ले गए जख्मी दहशतगर्द को। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि कितने हमलावर थे? हमलावर जो थे वो एक पूरे उनकी तश्कील थी, तकरीबन 8 से 10 हमलावर जो थे उन्होंने हमला किया। ये असद चौधवान का इलाका है, तहसील द्राबिन में। डेरा इस्माइल खान की तहसील है द्राबिन, उनका गांव है। वहां पर ये पोलियो टीम पर जो है दहशतगर्दों ने हमला किया, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग से जो है ना 5 पुलिस जवान जो है वो जख्मी हुए। ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया आपका।
अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात बरकरार, पाकिस्तान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है, जब मुनासिब लगे तो वो एक्शन लेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तान को बहुत जानी नुकसान पहुंचाया है। दहशतगर्दी का खतरा अमरीका, नेटो और अफगानिस्तान के हमसायों के लिए चैलेंज बन रहा है। और अब ये खबर कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से रियाज में अहम मुलाकात की है। मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। सऊदी वज़ीर दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 4 से 10 जनवरी तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर हैं। जनरल आसिम मुनीर दोनों बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे और मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फ़ौजी ताउन और ताल्लुकात पर तवज्जो रखी जाएगी। दौरों के दौरान कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। अरशद शरीफ के कत्ल केस में GIT की पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये GIT के लिए टेस्ट केस है, लोगों को एतमाद करना चाहिए, GIT को काम करने दें। अरशद शरीफ के कुछ डिजिटल आलात अभी तक नहीं मिल सके, पता चला है कि वो कीनियन पुलिस, इंटेलिजेंस या फिर 2 भाइयों के पास हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को आगाह किया कि स्पेशल GIT ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। ज़रूरत पड़ी तो तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का ऑप्शन भी मौजूद है। केस की मज़ीद समाअत GIT की कीनिया से वापसी पर होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी, खून जमा देने वाली सर्दी ने हर शय जमा दी है। कई शहरों में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर गया है। शहरी सर्दी के बायस पारे की भी उल्टी गिनती जारी। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी ने हर शय जमा दी। तालाब और झीलें बर्फ के मैदान में तब्दील, पहाड़ों से गिरती पानी की बूंदें बर्फ बन गई। सूरज की तपिश भी शहरियों को गर्माइश ना दिला सकी। आग की गर्माहट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। ज़ियारत में भी जाड़ा जान को आने लगा। तालाबों और नलकों में पानी जम गया। गिलगित में जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। फलक बोस पहाड़ों पर भी सफेद चांदी का राज, घर भी बर्फ से ढक गए। मरी और गिलियात में भी 7 जनवरी से मजीद बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी की जिले इंतजामिया ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी लहर में पड़ी। पारा -15 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, स्टोर -11, गुब्स -10, जबकि हुंजा और ज़ियारत में -9 रहा। कराची में मौसम सर्द होते ही बच्चों में सीने और पेट के अमराज फूट पड़े। माहिरीन कहते हैं कि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त ना होने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह हिफाजती टीके न लगवाना है। मज़ीद बता रहे हैं शफकत अजीज़ अपनी इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मौसम सर्द होते ही मौसमी बीमारियां फूट पड़ी। नज़ला, जुकाम, नमूनिया और सीने के अमराज में मुब्तला हजारों केसेस शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। सिविल अस्पताल कराची में रोजाना 500 से 600 बच्चे मौसमी बीमारियों का शिकार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। OPD में तो पेशेंट काफ़ी होते हैं, डेली 5 से 600 पेशेंट डेली OPD में आते हैं, सिर्फ पीट्स के। ठीक है, पहले पेशेंट्स आते थे खांसी जुकाम बुखार के, अभी जो है दमे के पेशेंट और एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस, ये क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। माहिर अमराज इत्फाल डॉक्टर अमीना कहती हैं कि बच्चों में मौसमी बीमारियों की एक बड़ी वजह मामूल की हिफाजती वैक्सीन का ना लगवाना है, जिससे बच्चे में कुव्वत मुदाफ़त कम होती है और बच्चा बीमारियों का शिकार हो रहा है। जो भी OPD को अटेंड करता है उस बच्चे की वैक्सीनेशन का स्टेटस चेक किया जाता है कि इस बच्चे को आया अपनी उम्र के हिसाब से पूरे टीके लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। नहीं लगे होते तो पहले वो बच्चा अपना जो टीका ज़रूरी है वो पहले लगवाएगा, वो टीका शो करेगा कार्ड हमें, उसके बाद डॉक्टर अटेंड करती है और दवा देगी। माहिरीन ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को सर्द मौसम से बचाएं, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। कैमरामैन जमशेद अली के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। बरतानवी शहजादा हैरी की किताब स्पेयर 10 जनवरी को शाया होने को तैयार है, जिसकी कुछ तहारीक लीक हुई हैं। उनमें दावा किया गया है कि 2019 में लंदन के महल में प्रिंस हैरी के बड़े भाई विलियम ने उन पर हमला किया, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया, उन्हें मारा और गुस्से में घसीटते हुए उन्हें दरवाजे तक लेकर आए। उनके जिस्म पर खरोचें आई हैं और जख्म के निशानात होने का भी उन्होंने दावा किया। हैरी ने कहा है कि दोनों में अहलिया मेघन के हवाले से गुफ्तशनीद हो रही थी। विलियम ने मेघन मार्कल को मुश्किल और बदतमीज़ कहा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।